Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss about administrative distance, right? So what is administrative distance, right? So administrative is a short form of AD. So administrative distance is the features of router that router uses to determine which routing protocol will be used if there are two or more routing protocols provide route information for the same destination. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई राउटर अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सेम डेस्टिनेशन, राइट, सो विच राउटिंग प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड इन द राउटिंग टेबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर द टोपोलॉजी R1 राउटर 192.168 राउट रिसीव कर रहा है OSPF के थ्रू, राइट, इस राउट को, एंड सेम राउट it is receiving from EIGRP route, right? So 192.168 route is receiving from R3 router, and similarly 192.160.1.0/24 is receiving via R4 router. So R1 router, which routing protocol will be used in this routing table, right? In R1 routing table. So as you can see that in between R1 and R5 and R2, I have configured OSPF protocol, right? And in between R1, R3 and R5, I have configured EIGRP protocol, right? And R1 and R4 and R5 between I have configured RIP protocol, right? So 192.168.10 is receiving same route from via R2, R3 and R4 to R1 router, right? So I will show you it. This router will be used first time R3. It will receive via R3 router, right? So 192.168.1.0/24, it will receive via R3 router first, right? So let's suppose if this route will be down or this router got down, right? So comparison between will be done in between R2 and R5. So it will select this time R2 router, which is receiving via OSPF, right? Let's suppose this router will also got down, so it will install via R4 router, because here it is running a RIP protocol, and I have written some points related to RIP, and it is a locally significant, and it is not advertised in the routing updates, right? So AD value will be locally significant and it will not be advertised, right? And lowest AD value will be preferable than higher AD value, right? And if the administrative distance is 255, so the router does not believe the source of that route and does not install the route in the routing table. So let's suppose if any routing protocols has AD value 255, so router will not use that. So router will not install that route, right? So you can modify the administrative distance of a protocol through the distance command in the routing process subconfiguration mode, right? So you can change the administrative distance via this command, right? Distance 90, whatever you want to change, you can change from 1 to 255, right? So it is a locally significant. AD value will be locally significant. So let's go to lab, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने R1 एंड R2 के बीच मैंने 10.1.0/24 का सबनेट यूज किया है, एंड between R2 and R4 I have used 40.1.0/24 network,
and similarly R1 and R3 I have used 20.1.0/24 subnet, and the same way I have configured in 50.1.0/24 between R3 and 4, and as you can see that the 30.1.0/24 is configured between R1 and R4, and R4 and R5 between I have used 60.1.0 and .0/24, 60.1.0/24, and right. So as you can see that this is the LAN environment 192.168.1.0/24, right? So this route and this prefix is receiving via OSPF, IEGRP and RIP to R1 router. So यहाँ पे जो 192.168.1.0/24 नेटवर्क है, ये OSPF से भी इस R1 राउटर को रिसीव होगा, EIGRP से रिसीव होगा एंड RIP से इसको रिसीव होगा R1 राउटर को। बट ये इसको अपने राउटिंग टेबल में इस राउट को 192.168.0/24 को इंस्टॉल करेंगे वाया EIGRP, बिकॉज EIGRP की एडी वैल्यू यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है, राइट? सो 90 एडी वैल्यू EIGRP होती है एंड OSPF की 1110 होती है, एंड EIGRP की जो एडी वैल्यू होती है वो 90 होती है, एंड रिप की जो एडी वैल्यू होती है वो 120 होती है, राइट? सो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट एडी वैल्यू है वो EIGRP की है, तो R1 के राउटिंग टेबल में ये वाला रूट सबसे बेस्ट होगा, राइट? एंड लेट सपोज इफ R3 राउटर डाउन हो जाता है तो ये इनके बीच कंपैरिजन होगी रिप एंड OSPF में। तो R1 राउटर OSPF वाला रूट अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, बिकॉज OSPF की जो एडी वैल्यू होती है लोवेस्ट है 110, राइट? बिकॉज रिप की एडी वैल्यू जो हाईएस्ट है 120। और लेट सपोज OSPF का कोई लिंक या ये राउटर डाउन हो गया तो अपना राउटिंग टेबल में रिप को इंस्टॉल करेगा, इस राउट को 192.168.1.0/24 को, राइट? सो लेट्स कॉन्फ़िगर OSPF, right? So first I will show you the इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये R1 राउटर के इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है। सो आईपी इंटरफेस R2 राउटर के इंटरफेस की कॉन्फ़िगर है। तो आईपी इंटरफेस R4 एंड R5, राइट? अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं तो अभी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है ऑन ईच एवरी राउटर। सो आईपी राउट, सो आईपी राउट, सो आईपी राउट, तो आईपी राउट R1। सो अभी आप ये देख सकते हो कि 192.168.1.0/24 का नेटवर्क R1 के राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो मैं R1, R2 एंड R5 के बीच मैं यूज करूंगा OSPF, एंड R1, R3 एंड R5 के बीच आई विल यूज EIGRP, एंड R1 एंड R4 एंड R5 आई विल यूज RIP, right? So first I will configure on R1 router OSPF configuration. Router OSPF, router OSPF 100, router ID 1.1.1, right? Network 10.1.1.0, wildcard mask area ID 0, right? Then R2 configured terminal, router OSPF 100, router ID 2.2.2, network 10.1.1.0, 255 area 0, and 40 network I have to also advertise 40.1.
40.1.1.0 वर्ल्ड कार्ड मास्क एरिया आईडी 0 exit and R5 I configure router OSPF 100 router ID 55.5, right? I think I haven't configured, so okay, I have configured router ID. Network 40.1.1.0 wildcard mask area ID 0, and I will also advertise 192.168.1.0 subnet. तो अभी आप देखोगे कि यहाँ के R1 राउटर के राउटिंग टेबल में 192.168.1.0 का राउट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये R1 से रिसीव आई मीन R2 से रिसीव कर रहा है। टिल नाउ आई हैवंट कॉन्फ़िगर EIGRP एंड OSPF, and now I am going to configure। इसके राउटिंग टेबल में आप देख सकते हो R1 के अभी इसने O से ये जो प्रीफिक्स इंस्टॉल किया है 192.168.0 को वो OS से इंस्टॉल किया है, इट मींस OSPF से इंस्टॉल किया है, राइट। सो जैसे ही मैं EIGRP और रिप कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो यहाँ पे EIGRP वाला राउट इंस्टॉल हो जाएगा, D से उसको शो करेगा, राइट, इसके राउटिंग टेबल में। सो मैं अब कॉन्फ़िगर करूंगा R1 एंड R3 के बीच रिप एंड R3 और R5 के बीच आल्सो रिप। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 200, राइट, नेटवर्क 20.1.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट, नो ऑटो समरी। R3 पे जाऊंगा मैं, शो आईपी इंटरफेस, इसके कौन कौन सा इंटरफेस है, शो आईपी इंटरफेस, ओके। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 200 नेटवर्क 20.1.1.0 वर्ल्ड कार्ड मास्क, ओके, नेटवर्क, ओके, 50 का नेटवर्क इज आल्सो देयर, नो ऑटो समरी। एंड R5 पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 50 का नेटवर्क है और इस नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करूंगा। राउटर EIGRP 200 नेटवर्क 50.1.1.0 वर्ल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 192.168.1.0 वर्ल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। सो अब आप R1 के राउटिंग टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये जो 192.168.1.0 है वो EIGRP से इंस्टॉल हो जाएगा और राउटिंग टेबल में D से शो करेगा, सो IP राउट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ये वाला रूट है पहले OSPF से इंस्टॉल हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अभी ये किससे इंस्टॉल हो गया है, अभी ये इंस्टॉल हो गया है D से, मीन्स EIGRP से इस प्रीफिक्स को लर्न कर रहा है। जबकि इस R1 राउटर को सेम राउट R2 से भी रिसीव हो रहा है एंड R3 से भी रिसीव हो रहा है, राइट।
Just a second, actually my system got hanged. राइट, अब मैं नेटवर्क 30 वाला नेटवर्क, नो ऑटो समरी, R4 राउटर पे, राइट। I will configure terminal router RIP version 2 network 30.1.1.0 network 60.1.1.0 no auto summary configure terminal router RIP version 2 network 60.1.1.0 network 192.168.1.0 no auto summary. So IP route. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे राउट की इंफॉर्मेशन आ गई है, 60 वाले भी आ गई है एंड 40 वाली, वॉट एवर राउट इज देयर, ऑल routes are exchanged right in the R1 routers routing table. तो अभी आप देख सकते हो कि एडी वैल्यू का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि इफ, अगर कोई राउटर, एडी वैल्यू का जो मतलब होता है यहाँ पे, व्हाट इज एडी वैल्यू, अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स दो और दो से अधिक राउटिंग प्रोटोकॉल से रिसीव हो रहा है, तो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स में उस राउट को इंस्टॉल करेगा जिस राउटिंग प्रोटोकॉल्स की एडी वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी। तो यहाँ पे OSPF और EIGRP और RIP की में से जो सबसे लोवेस्ट एडी वैल्यू है वो EIGRP की है, राइट। EIGRP प्रोटोकॉल है। आफ्टर दैट OSPF की है, OSPF की जो एडी वैल्यू होती है वो 10 होती है और RIP की 120 होती है। इसमें सबसे जो लोवेस्ट है तो वो R1 राउटर के राउटिंग टेबल्स में इंस्टॉल होगी। सो ये जो 192.168.1.0 प्रीफिक्स है, इसको R1 राउटर अपने राउटिंग टेबल्स में डी से इंस्टॉल करेगा। हालांकि ये जो राउट है इससे भी लर्न होता है, R2 राउटर से, R3 राउटर से, R4 राउटर्स को, R1 राउटर्स को। वो ये जो 192.168.1.0/24 है, इस R1 राउटर्स को R2 से भी रिसीव हो रहा है, R3 से भी रिसीव हो रहा है, R4 से रिसीव हो रहा है, बट इसको इंस्टॉल करेगा अपने राउटिंग टेबल्स में शो करेगा डी से या JRP से, राइट, बिकॉज एडी वैल्यू इज सबसे लोवेस्ट है इसकी, ये JRP की है और ये लोकली सिग्निफिकेंट होती है, जो कि एडी वैल्यू राउटिंग टेबल के अपडेट्स में शेयर नहीं होती है, राइट। सो अभी आपको देख सकते हो, अगर मैं इस पीसी को ऑन करूं, कंसोल, राइट, PC1, तो आई गॉट कंसोल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पिन 10.1.1.1 को मैं पिन कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ आई शो यू द राउटिंग टेबल्स ऑफ R1 राउटर, सो IP राउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 राउटर को डी से रिसीव हो रहा है। सो IP राउट, अगर मैं इसको दिखाई 192.168.1.0, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिसीव हो रहा है वाया EIGRP 200 से, और इसकी जो डिस्टेंस है ये सबसे लोवेस्ट है, राइट, मीन्स एडी वैल्यू, राइट।
अगर सो आईपी प्रोटोकॉल्स की दिखाऊं कौन कौन से इस पे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है और इसकी एडी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, राइट। एडी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एडी वैल्यू 110 है। अगर मैं ईआईजीआरपी की एडी वैल्यू शो करूँ तो इसका 90 है, और रिप का मैं शो करूँ तो इसका एडी वैल्यू होगा 120। हियर एज यू कैन सी दैट आईपी राउट समरी। सो आईपी प्रोटोकॉल समरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एडी वैल्यू भी चेक कर सकते हो, राइट। सो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम इस राउटर का इस इंटरफेस को डाउन करेंगे, तो आप देखोगे कि ये वाला राउटर जो 192.168.1.0/24 है, ये ओएसपीएफ से इंस्टॉल कर देगा R1 राउटर अपने राउटिंग टेबल में। अगर मैं सो आईपी इंटरफेस भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 वाला जो सबनेट है हमारा ये जेआरपी से कनेक्टेड है, आई मीन R3 राउटर से। अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन कर दूं तो ये ओएसपीएफ से इंस्टॉल कर देगा 192.168.1.0/24 के अपने राउटिंग टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये डी से लर्न कर रहा है, मीन्स ये जेआरपी से। अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन करूँ जो ये जेआरपी से कनेक्टेड है, 2.0 शट डाउन तो आईपी राउट। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी राउट को इसने राउटिंग टेबल में वो से इंस्टॉल कर दिया, मीन्स अभी ये ओएसपीएफ से इस राउट को रिसीव कर रहा है। लेट सपोज अगर ये वाला भी राउट डाउन हो गया, मतलब ये कोई लिंक ही डाउन हो गया R2 वाला, या R2 राउटर ही डाउन हो गया, तो इसमें ये वाला जो राउट है 192.168.1.0/24 है, उसको अपने राउटिंग टेबल में आर से इंस्टॉल कर देगा, रिप से इंस्टॉल कर देगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 1/0 शट डाउन तो आईपी राउट। तो आप कुछ समय का वेट करिए। तो आप देख सकते हैं कि 192.168.1.0 जो इसके R1 के राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड है वो आर से इंस्टॉल्ड है, इट मीन्स रिप से इंस्टॉल्ड है। तो आईपी राउट 192.168.1.0 आप देख सकते हो कि अभी ये रिप से इसको इंस्टॉल किया है। अब मैं दोबारा R2 राउटर के इंटरफेस को आप करूं जो R1 राउटर से कनेक्टेड है, डिजिट इथरनेट 1/0 नो शट डाउन, अगेन ये ओएसपीएफ से इंस्टॉल कर देगा। तो आईपी राउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये अर्लियर इसी राउट को रिप से इंस्टॉल किया था, अभी इस राउट को इंस्टॉल कर दिया ओ से, राइट। सो आईपी राउट 192.168.1.0 आप देख सकते हैं ओएसपीएफ से इंस्टॉल किया है, जबकि इसका एडी वैल्यू है 110, लोवेस्ट है रेदर देन रिप से, राइट। अगर मैं चाहूँ, लेट मी शो यू इंटरफेस की इथरनेट 2/0 नो शट डाउन, तो अभी ये जेरपिन से इंस्टॉल कर देगा अपने राउटिंग टेबल में। सो आईपी राउट, सो आप देख सकते हो अगेन इसने ये जेरपिन से इंस्टॉल कर दिया, राइट। दिस राउट हैड बीन इंस्टॉल्ड वाया EIGRP। सो आईपी राउट 192.168.1.0। तो आप देख सकते हो कभी इस राउट को इसने इंस्टॉल किया है ये जेआरपी से। लेट मी शो यू वन थिंग। अगर मैं इस रिप का, राइट, रिप की एडी वैल्यू अगर इसके राउटर R1 के राउटिंग टेबल में मैं इसका एडी वैल्यू अगर मैं 20 कर दूं, तो यही सेम राउट 192.168.1.0 जो अभी इसको ये जेरपिन से इंस्टॉल कर रहा है, उसको रिप से इंस्टॉल करने लगेगा, राइट। इट विल स्टार्ट शोइंग वाया रिप प्रोटोकॉल। So let me show you how you can change the AD value, right? Configure terminal router read
एंड डिस्टेंस वर्जन 2 डिस्टेंस मैं 20 कर दे रहा हूँ, राइट। तो आप अभी देखोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे इसी राउट को इसने इंस्टॉल कर लिया रिप से, राइट, रिप प्रोटोकॉल से। आप देख सकते हो कि इसका एडी वैल्यू 20 है और ये 2 होप अवे है, राइट। तो अर्लियर ये इंस्टॉल किया था EIGRP से। And AD value will be locally significant and it is not advertised in the routing updates, right? One more time, I will show you this. Okay, one more thing I will show you. So as you can see that directly connected interface की जो AD वैल्यू होती है वो 0 होती है, स्टैटिक की 1 होती है, राइट। EIGRP की जो होती है एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की, EIGRP समरी राउट की जो AD वैल्यू 5 होती है, BGP की 20 होती है, एक्सटर्नल BGP की, इंटरनल EIGRP की 90 होती है, IGRP की 100 होती है, OSPF की 110 होती है, राइट। एंड रिप की 120 होती है, अननोन की 25 होती है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर कोई राउटर की जो एडी वैल्यू 25 है, 255 है, आई मीन 255 है, तो वो राउटर उस राउट को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। लेट मी शो यू। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर राउटर रिप वर्जन 2 डिस्टेंस 255 कर दिया मैंने। लेट्स सी। सो आईपी राउट क्लियर आईपी राउट स्टार। सो अगेन ये आप देख सकते हो कि ये 90 से इंस्टॉल कर, आई मीन डी। लेट मी अगेन चेंज द एडी वैल्यू। राउटर EIGRP 200 डिस्टेंस 255। सोर्स आईपी व्हाट 20.1.1.2 से अगर रिसीव कर रहा हूँ। वर्ल्ड कार्ड विज क्लियर आईपी राउट स्टार। तो अभी आप देख सकते हो इसको इसने अगेन इंस्टॉल कर लिया OSPF से। हम अगेन चेंज करेंगे, देखेंगे कि अगर किसी प्रोटोकॉल्स की जो एडी वैल्यू 255 है तो उसको अपने राउटिंग टेबल में राउटर इंस्टॉल करता है उस राउट को कि नहीं, राइट। कॉन्फ़िगर राउटर OSPF 100 डिस्टेंस 255। तो आईपी राउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 192.168.1.0 है वो R1 राउटर्स के राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
अगर किसी राउटर्स की जो राउटर्स राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू अगर 255 होगी तो राउटर उसको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 255, राइट, द राउटर डज नॉट बिलीव द सोर्स ऑफ दैट राउट एंड डज नॉट इंस्टॉल द राउट इन द राउटिंग टेबल। सो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा था दैट्स हैज बीन प्रूव्ड, राइट। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 100 नो डिस्टेंस 255। जैसे मैं इसको हटाऊंगा अगेन ओ से इंस्टॉल हो जाएगा, मीन्स OSPF से। और मैं अगेन इसको राउटर PIGRP 200 इसको अगर मैं इस कमांड को हटाऊं तो अगेन ये इंस्टॉल हो जाएगा PIGRP से। सो IP राउट क्लियर IP OS क्लियर IP राउट। तो IP राउट। सो अगेन देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये डी से इंस्टॉल हो गया। कॉन्फ़िगर राउटर रीप वर्जन 2 डिस्टेंस 255। मैं इस कमांड को हटा रहा हूँ। तो IP रीप। तो अभी ये EIGRP से इंस्टॉल किया है R1 राउटर बिकॉज इसकी एडी वैल्यू जो सबसे लोवेस्ट है, ये जो मैंने 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज किए हैं, राइट। सो ये this is the AD value, right? So I hope you have understood these things, right? And what is administrative distance? One more time, I will recall you. So if अगर one more time I will recall you, अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स दो टू और मोर राउट से रिसीव कर रहा है, इट मीन्स अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स दो या दो से अधिक राउटिंग प्रोटोकॉल से उस राउट्स को इंस्टॉल कर रहा है अपने राउटिंग टेबल में, सो जिस राउटिंग प्रोटोकॉल्स की एडी वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी उसको अपने राउटिंग प्रोटोकॉल में इंस्टॉल करेगा। सो बेसिकली राउटर यूजेस राउट एडी वैल्यू एंड router determines which routing protocol will be used if there are two or more routing protocols provide route information for the same destination, right? So one more thing I will show you। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने पॉइंट्स लिखे थे और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एडी वैल्यू, राइट। So thank you for watching this video. I hope you have understood using this video, right? So if you have understood anything from this video, I would like to request you please like and subscribe my channel so that I can enhance my technical skills as well. Thank you.